Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے جی. باقی تو آپ حضرات کوئی سوال کریں گے تو سوال یہ مولانا صاحب، آج خورشید احمد شاہ دیوبند آئے آپ کے بیان پہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2014 میں جب دھرنا تھا اس وقت بھی جمہوریت بچانے کے لیے کوشش کی تھی، اور آج جو نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہیں تعبیر کر لیں جی. یعنی وہ ڈبونے کو بھی نکالنا کہیں اور نکالنے کو بھی ڈبونا کہہ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. ایک ہی بات کریں، یا ان قوتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت بچائی جا سکتی ہے یا ان قوتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کو سمندر میں غرق کیا جا سکتا ہے. جو قوتیں اس حوالے سے معروف ہیں کہ وہ جمہوریت کے خلاف ان کا ایک کردار رہا ہے، پھر ان قوتوں کو سپورٹ کرنا، ان کو طاقتور بنانا، ان کو حوصلہ دینا، یہ کس طرح جمہوریت کا تحفظ ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب جو کہ وہ سادات خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے لیے وہ بڑا احترام کا رشتہ ہے جی. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ تم مدینہ مزاج لوگوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں. میں یہی کہہ سکتا ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہر بات قوم کو بہت بعد میں پتہ چلتی ہے. ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا، رہائی کا معاملہ پتہ چلا کہ کس نے رہا کروایا ہے. اندرونی معاملات ہیں یا بیرونی سازش ہے یہ پاناما کیس کو؟ آپ کس نظر کوئی بیرونی سازش؟ دیکھیں میں ایک گزارش کرتا ہوں، کچھ حقائق ہیں جو ہمیں تسلیم کر لینے چاہیے. اس وقت دنیا پھر تقسیم کی طرف جا رہی ہے اور جس کو ایک گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. پاکستان اپنے آنے والے مستقبل کے اشارے دے چکا ہے. چین پاکستان کی 70 سالہ دوستی اب ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس سے پاکستان نے ایک نئے مستقبل کا تعین کر دیا ہے. اس وقت چین، روس، پاکستان، ترکی ایک دوسرے کے قریب تقریباً آ چکے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب دنیا میں امریکہ اور مغرب کے مقابلے میں معاشی لحاظ سے چین ایک متبادل قوت کے طور پر ابھرے گا، تو آپ نے خود یہ نوٹ کیا ہے کہ امریکی سربراہ نے براہ راست چائنا کو دھمکیاں بھی دی کہ حدود میں رہو ورنہ پھر نتائج سے آگاہ رہو. پھر سی پیک کا آغاز پاکستان کے راستے سے ہوا. یعنی پوری دنیا میں جو ون روڈ ون بیلٹ کے حوالے سے جو چائنا کی پالیسی تھی، تو پہلا بیلٹ اس کا وہ پاکستان بنا. اب اس حوالے سے امریکہ اور انڈیا ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو دوست کہہ رہے ہیں. تاکہ چائنا کے اس نئی پرواز کو اٹھنے نہ دیا جا سکے. پاکستان جو ٹیک آف کرنا چاہتا ہے اقتصادی لحاظ سے اور پچھلے ادوار میں دیوالیہ پن کے قریب ہو گیا تھا. عالمی ادارے دنیا کو مشورہ دے رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے. یہاں کاروباری طبقہ سب کچھ سمیٹ کے ملک سے باہر جا رہا تھا. آج پھر دنیا کہتی ہے
कि पाकिस्तान ने इक़्तिसादी लिहाज से अपने आप को संभाल लिया है, पेशरफ्त के इशारे दिए हैं, दिवालियापन से निकलने का इंदिया दिया है, पैसे लोग अब पाकिस्तान की तरफ वापस ला रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हर एतबार से हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम हो गई है। GDP की शरह-नुमू के हवाले से हम रिकॉर्ड सतह पे पहुंचे हैं और अगले 2 सालों में 7% तक जाने का हदफ मुकर्रर किया है। फॉरेन रिजर्व के हवाले से $25 अरब के हदफ को पहली बार पाकिस्तान पहुंचा है। लेकिन साथ साथ तिजारती खसारे के हवाले से भी मसला मौजूद है, बैरूनी कर्जाजात के हवाले से भी। बैरूनी कर्जा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन कर्जे लो और पाकिस्तान की मईशत को उससे फ़ायदा न हो तो फिर कर्जे का मफहूम और होगा, और कर्जे लेकर पाकिस्तान की मईशत को उसके सहारे से उठा लो, उसका मफहूम फिर एक और हो जाता है। करप्शन का कोई केस इन 4 सालों में, गुज़श्ता सालों में मौजूद नहीं है। इन तमाम हवालों के साथ अब आगाज कहां से किया जाए, इस नए इक़्तिसादी सफर को सबूताज करने का, CPEC को सबूताज करने का कहां से आगाज किया जाए? किसी भी मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम से फेज़ से मामला चल रहे हैं, कभी दहशतगर्दी के जरिए से और कभी आपके सियासी बहरान के जरिए से। कभी अफगानिस्तान उसका फेज है, फिर मशरिक़ वस्ता में इराक, लीबिया और आज शाम और यमन की सूरत हाल। अब सूरत हाल जब इंडिया और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए हैं तो जाहिर है कि बैनुल अक़वामी सतह पर चाइना उसका हदफ होगा, खित्ते के हवाले से पाकिस्तान उसका हदफ होगा। क्या पाकिस्तान इन हालात में इसका मुतहम्मिल है कि हम अपने इन हालात में इस किस्म के बहरानों का शिकार हों? पाकिस्तान की सियासत तकसीम हो रही है, इस तरह पूरी दुनिया में हमेशा एक नजरियाती कशमकश रही, आज फिर एक कशमकश की तरफ हम जा रहे हैं। प्रो CPEC कुव्वतें, एंटी CPEC कुव्वतें, एक ग्रुप की लॉबी, दूसरे ग्रुप की लॉबी। इससे आपके मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल में सियासत तकसीम होगी। इस हवाले से हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हैं, बस हमारा यही मौक़िफ़। और पानामा जो है ये वही अदम इस्तेहकाम के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे करप्शन के खात्मे का कोई ताल्लुक नहीं है हमारी नज़र में। आज जो है आखिरी दिन था मेरे ख्याल में, अभी तक जो सुनात आ रही है इस्लामाबाद से, को जो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था कि एतराज़ात दाखिल किए जाएं, पीर को समाप्त होने वाली है। अभी तक इतराज़ ये है कि हुकूमत ने कोई एतराज़ात DIT की रिपोर्ट से दाखिल नहीं की अदालत में। क्या समझते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी? एक तरफ वज़ीर आज़म को नाहल कराने के लिए बातें हो रही है, दूसरी तरफ 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को नाहल करार देने के लिए भी अदालतों से रुजू किया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारी सूरत हाल जब आप एक पे हमला करेंगे तो वो आप पे हमला करेगा, और इस तरीके से ये जो कशमकश है सियासी हवाले से, ये किन कुव्वतों की तक़वियत का सबब बनता है? ये मुल्क में आइंदा सियासी माहौल के लिहाज से किसको खेलने के मौके दे रहा है? कम अज़ कम सियासतदानों के खेलने के मौके मादूम होते चले जाएंगे, और फिर ये मुल्क, फिर हम आपस में बैठेंगे, आंजलि मिल के करें आहुजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ वाए गुल, यही कसीदे हम पढ़ते रहेंगे और ये मुश्किलात हमारी रहेंगी। मेरे ख्याल में हुकूमत भी, जो मेरी मालूमात हैं, जो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की है, कि वो इस JIT रिपोर्ट को कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। मौलाना ये बताया कि कल जो चौधरी निसार साहब की बात है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि अब कोई मौजिज़ा ही आपको बचा सकता है। आखिर को क्या असबाब है? वज़ीर आज़म साहब से चौधरी निसार ने कहा कि अब कोई मौजिज़ा ही आपको बचा सकता है। आपको किसने ये बात बताई?
उसको भी मिसाल देते ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल मैटर है। ये तो आप लोगों ने भी कहा है कि अंदर की कहानी बाहर आ गई। अब अंदर की कहानी जो है, अगर आपके घर की और मेरे घर की कहानी बाहर आ जाए तो क्या आप इसको किस तरह समझेंगे जी? तो मेरे ख्याल में ये घरों में पार्टी के अंदर में झांकना, वहाँ से कोई आपस में बहस हो रही है, मुबाहिसा हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यहाँ आप उसका नक्शा, उसकी तस्वीर ही बदल जाती है। बताएं कि अगर पनामा केस में फैसला है, अदालती फैसला, तो पनामा जेटीआई के हक में आ गया, तो जेयूआई का लाएअमल क्या होगा? हम अदालत से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, तहरीक इंसाफ की नहीं। कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद जो है होने वाला मैं खुशखबरी दूंगा, एक हफ्ते का वो टाइम दे रहे, तो ये क्या टाइम दे रहे? पिछली दफा भी उन्होंने वलीमे पे नहीं बुलाया किसी को। हम भी चाहते हैं कि इस दफा कोई वलीमा, ग्रैंड वलीमा हो उनका। मौलाना साहब, आप नहीं समझते हो इस वक्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सियासी जमातों की सब बंदी हो रही? देखिए, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कभी फरीक नहीं समझता। वो एक नागुज़ीर इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, स्टेट का इदारा है, फौज उसमें शामिल है, अदालतें उसमें शामिल होती हैं, और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हम इन इदारों को गैर जानिबदार रहने दें, इनको किसी कीमत पर हम फरीक ना बनाएं। लेकिन मुझे इतना भी एतमाद है कि अगर CPAC को हमने कामयाब बनाना है तो उसमें जो फौज की तरफ से जमानत है वो बड़ी कौम के लिए एक हौसले वाली बात है। लेकिन फौज और कौम को एक पेज पे रहना चाहिए। अगर अवाम के अंदर सियासी हैजान हो, उसमें हंगामाराई हो, यकजहती खत्म हो जाए, तो फिर फौज अकेले नहीं लड़ा करती, कौम के ताउन से और उनकी पुष्पनाई से लड़ा करती है, और इस हवाले से हमें कौम के अंदर एक यकजहती चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार के नेब में हजारों अरबों के केसेस जो है वो आए हुए हैं, लेकिन एहतिसाब सिर्फ जो है प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि एक बिला इम्तियाज ये हजरत हम आइडियल बातें करते रहते हैं। हर हुकूमत जो बरसर इख्तिदार होती है उनके दौर में उनके केसेस उठाए जाते हैं, ताकि मीडिया भी जब अपोजिशन की खबर आती है तो उसकी खबर होती है, वो हुकूमत की तरफ से खबर आती है, वो उनकी नज़र में खबर नहीं होती। तो पिछली मरतबा जरदारी साहब को हदफ बनाया गया, यूसुफ रजा गिलानी को हदफ बनाया गया, उसको घर भेजा गया। आज जैसे वो आराम के साथ बैठ गए हैं, उनके केसेस ही खत्म हो गए हैं, और अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी तो उनके खिलाफ एक और चीज आ जाएंगी। तो ये एहतसाब नहीं हुआ, फिर ये तो सिर्फ एक सियासी मकसद के लिए, वो जो अरबी का मशहूर एक मकूला है, कलिमत हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, के बात तो बज़ाहिर बहुत अच्छी है, लेकिन इससे आपका जो मकसूद है वो बातिल है, वो गलत है। ये बताइएगा कि आप आपके लिए भाई क्या कहने, हाँ, पार्टी साहब आप बात करें। जिसके लिए आप आए हैं, MML की तरह का इतिहास होगा क्या, इस तरह का इतिहास है? इब्तिदा तो एक मुशावरत से होगी, और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक कमेटी भी बनाई हुई है तमाम मजहबी सियासी जमातों से, इसी इत्तेहाद के खातिर या इंतखाबी ताउन के खातिर, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की सरबराही भी बनाई गई है। तो हम सब उसमें मौजूद होंगे, कुछ जमातों से राब्ते हुए भी हैं। जब शाह साहब बुलाएंगे सबको, तो वहाँ पर एक मुशावरत के ज़रिए से हम मिलकर एक अगले लाए अमल की तरफ जा सकेंगे। नहीं, एहसान भाई आप सवाल करें, एहसान भाई सवाल कर लें जी। मौलाना साहब को आगे किया जाता है कि उसके लिए राय अम्मा को हमवार करें तमाम सियासी जमातों से मिलकर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार भी यही तासुब दिया जा रहा है। देखिए, मैं एक पाकिस्तान का सियासी कारकुन हूँ, लेकिन तजर्बा बहुत ज़्यादा है मुझे। जिस गहराई से मैं मुल्क के हालात को देखता हूँ और समझ लेता हूँ और भांप लेता हूँ, उसको इन चुटकुलियों से ज़ाया न किया जाए। ये जो आप जिस अंदाज में सवाल कर रहे हैं,
मुझे कोई रहनुमाई नहीं दे रहा होता, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं दूसरों को रहनुमाई दूँ और उनको बताऊँ कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारी एक कमिटमेंट है कि हम मुल्क के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं। अब जहाँ पर फरीक बन जाते हैं और मैं एक सही बात कह रहा हूँ और मुल्क के लिए कह रहा हूँ और बैनुल-अक़वामी हालात के तनाजुर में कह रहा हूँ, तो उसको उसी हवाले से ज़ेर गौर तो लाया जाए। मेरा मुखालिफ भी ज़रा एक वक्त के लिए अलहदगी में बैठ कर इस पर गौर तो कर ले कि क्या मैं किसी को बचा रहा हूँ, किसी हुकूमत को बचा रहा हूँ या मैं मुल्क को बचा रहा हूँ। थोड़ा गौर तो कर लो इसके ऊपर। गौर करने में क्या हर्ज है? एहसान भाई पार्टी साहब ये बताइए कि जो दीनी जमातों का इत्तेहाद आप बनाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि MMA या मिलियन जैसी कौंसिल से पहले बनती रही है, उनका हशर तो नहीं हो कि बाद में वो गैर मौसर हो जाते हैं, जिससे दीनी जमातों की कमजोरी का एहसास पैदा होता है? देखिए, जो इत्तेहादें होती हैं वो हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ एक खास वक्त तक जाती हैं। और लेकिन आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगरचे MMA नहीं रहा, लेकिन MMA की जमातों का जो बाहमी राब्ता है और आपस का खुशगवार ताल्लुक है वो टूटा भी नहीं है। हम मुसलसल राब्तों में रहते हैं, हम अच्छे माहौल में गुफ्तगू करते हैं। और यहाँ तक कि जमात इस्लामी जिसने के 4-4.5 साल PTI जैसी जमात के साथ गुजारे हैं, हमने इसके बावजूद भी उनके साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं किए, उनके साथ राब्ते बरकरार रखे हैं ताकि ये ताल्लुक किसी वक्त काम आ जाए दीनी हलकों के। तो हम तो इतने फराख दिल हैं इस हवाले से कि बावजूद 1000 शिकायतों के भी हम उन शिकायतों को ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। हम ये बड़ों का इत्तेहाद है, बच्चों का नहीं है। फिलहाल वो जो इकट्ठा कर रहे हैं ना चिल्लड़, जो बचा कुछ जैसे जब खाना की देर खत्म हो जाती है, नीचे वो जला हुआ कुरचन जो होती है वो जमा कर लें, फिर उसके बाद उनका नजरिया निकले। के हालात के ऊपर क्या कहेंगे? यहाँ जो नेब के कवानीन खत्म की जा रहे हैं, तो बात किया जाए दूसरे करप्शन के मामला क्या? देखिए, मैं किसी सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को चैलेंज करने नहीं आया हूँ। और नेब वो इदारा है कि इस पर मेरे ज़ाती तौर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारा कोई केस नहीं है वहाँ पर। पीपल्स पार्टी पर होंगे, मुस्लिम लीग पर होंगे, औरों पर होंगे, हमारा कोई केस वहाँ नहीं है। लेकिन मैं एक जिस तसव्वुर में मुशर्रफ के ज़माने में बनाया गया था, उस तसव्वुर को उससे अलग नहीं किया जा सकता। हर ज़माने में वो तसव्वुर उसके साथ वाबस्ता ही रहेगा। और आज जो पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून इस नेब से रो रही है, इसका रोना रो रही है। मैंने 18वीं तरमीम को तय करते वक्त उनको ये कहा था कि इस मुसीबत को बीच से निकाल दो। दोनों ने कहा नहीं, फिर पता नहीं लोग क्या कह देंगे, और इन्होंने उसको बरकरार रखा और आज यही उनके लिए वबाल बना हुआ। JIT की तश्कील क्या होनी चाहिए थी, या ये जो मामला का ये JIT में जाना चाहिए था? मुझे कुछ जो आईनी माहिरीन हैं उनका मेरे साथ राब्ता हुआ है, उनकी राय ये है कि JIT की तश्कील ये एग्जीक्यूटिव मैटर है, ये जुडिशल मैटर नहीं है। अब ये फैसला जो है आईनी माहिरीन कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर अदलिया ने एग्जीक्यूटिव की इख्तियार तो इस्तेमाल नहीं किए, तो यही हजरात इस पर राय दे सकते हैं। मेरी राय शायद इस हवाले से कोई ज़्यादा वज़नी ना। साहब ये बता दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ साहब की अगेंस्ट तो क्या वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? आप क्या समझते हैं, या असेंबली डिसॉल्व करेंगे क्या? इस अगर को मेरे ख्याल में अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि शायद ये ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा होगा कि ये निज़ाम चलता रहेगा। मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस से